see the syllabus, prelims syllabus of UPSC, as far as the modern India is concerned, talks about only two parts: the history of India and the Indian national movement. Now, if you see properly, this part, history of India, it can be any of the three. It can be ancient history, it can be medieval history, it can be modern history. Okay, any of the history. The history of India, में these two are automatically considered as a part. यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं बोला है, दैट मींस एंशियंट मेडिवल ये भी यहाँ आ जाता है, मॉडर्न भी यहाँ आ जाता है. ओके, नाउ अभी मॉडर्न हिस्ट्री की देयर आर टू पार्ट्स. ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो है दैट दे आर एक्सक्लूसिवली सेइंग इंडियन नेशनल मूवमेंट. दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया. ठीक है, एंड द अदर पार्ट इज मेडिवल के बाद से लेके इंडियन नेशनल मूवमेंट तक का पीरियड. मतलब फॉर एग्जांपल, इफ the medieval India ends in, for example, 1750. Okay, an Indian national movement starts from 1880. Okay, then ये period का जो बीच का period है, okay, that is the first part of this part of modern India. Okay, getting the point? Okay, modern India के जो दो part है, first part is this, from end of medieval India to start of Indian national movement. The second part is the Indian national movement itself. Okay, so second part उन्होंने syllabus में directly दिया हुआ है. Got the point, everybody? Okay, come to the main syllabus. This is the main syllabus. In the main syllabus, if you see, it can be divided actually into parts. Okay, this, the first two, this and this part and this part, heritage and the cultural history. Okay, and this cultural history will contain what? This will cover the aspects of arts, literature and architecture. Okay, that means what? These two part is nothing but culture के part. Okay, ये दो part syllabus के जो हैं they are culture के part. Okay, now if you see, समझो, these two part, this and this, okay, these two parts are nothing but our modern India. Okay, they are modern India. Now if you see properly, modern India from the middle of the 18th century, middle of the 18th century मतलब ये 1750. बराबर, देखो तो यहाँ देखो उन्होंने लिखा है मॉडर्न इंडिया इज स्टार्टिंग फ्रॉम मिडिल ऑफ 1750. देखो जो मैंने यहाँ प्रीलिम्स के टाइम आपको बताया, दिस इज द पीरियड. तो यहाँ देखो वो बोला है उन्होंने मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट. अंटिल द प्रेजेंट मतलब क्या? ओके, यहाँ पे प्रेजेंट में दो पार्ट आ जाते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज 1950 तक, 1947 तक जो इंडिपेंडेंस है. हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में प्रेजेंट मतलब दिस. ठीक है, और इसके बाद 1947 से आगे का जो पार्ट है, इफ यू सी प्रॉपर्ली, इधर आता है नेक्स्ट पार्ट उसमें. So when UPSC in the syllabus itself is giving this part separately, okay, तो automatically ये समझ लेना चाहिए कि ये present का मतलब 1947 का है. ये post 1947 का बाद का जो part है, automatically it will go in post independence India. Okay, so if you see properly, ये जो second part of syllabus हमारा है, इस part में 1750 to 1947 को मॉडर्न इंडिया बोल दिया है, जो मैंने यहाँ आपको प्रीलिम्स के टाइम बोला था. Now if you see again, तो ये फ्रीडम स्ट्रगल सेकंड पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया का जो सिलेबस है, उसमें अगेन the stages, the contributor and contributions of different part of the country. It is nothing but ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमने ऊपर किया है. So in short, okay, in short, if you try to analyze, तो मेंस पर्सपेक्टिव में द हिस्ट्री सिलेबस इंडिया का कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 कल्चर, नंबर 2 द मॉडर्न इंडिया एंड नंबर 3 द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. ये तीन है. ओके, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ वी आर डूइंग दिस पार्ट, द मॉडर्न इंडिया पार्ट. दिस वन सेकंड ना. राइट नाउ जो हम लोग अभी करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस. 2 points. Indian history from middle of 18th century until the present, events, personalities and the issues. Then the Indian national movement या the freedom struggle, stages, contributor contributions. Okay, ये हम सब करेंगे.
Not this. When we are going to discuss the syllabus, we are not going to discuss on events, personalities, issues and stages. ये सब पार्ट जो है ये अपने आप आते रहेंगे एज एंड व्हेन वी आर गोइंग टू मूव थ्रू द सिलेबस। अभी देखो हिस्ट्री का जो जैसा करने का जो स्टाइल है ना, हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, इट इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम जिस तरह अपन पॉलिटी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पॉलिटी का जो एक्सपेक्ट है ना, उसमें एक एक पॉइंट के ऊपर यू कैन पिन पॉइंटली से कि व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व। यहाँ पे हिस्ट्री में वैसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि द रिलेशन विद करंट अफेयर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस इन केस ऑफ हिस्ट्री, which can be easily pointed out in case of polity and constitutions and IR and other subjects. Okay, तो ये पूरा अप्रोच टोटली अलग रहेगा यहाँ पे। कीप इन माइंड। ओके, वी हैव टू गो ईरा आफ्टर ईरा, टाइमलाइन फॉलो करते करते। ओके, और फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो मैंने आपको अभी दो पार्ट जो मैंने बताया, व्हाट इज दैट। ठीक है, इफ यू सी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अगर हम हिस्ट्री को अगर हम देखना चाहें, ओके, वी कैन एक्चुअली मेक इट लाइक दिस। फर्स्ट एक्सपेक्ट 1757। ओके, जो 1750 मतलब मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी बोला है सिलेबस में ना, वो एक्चुअली स्टार्ट होता है यहाँ से, बैटल ऑफ प्लासी। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, इट स्टार्ट फ्रॉम हियर। बैटल ऑफ प्लासी क्या है, क्या हुआ इसमें, जब हम प्लासी करेंगे तभी देखेंगे। जस्ट अभी आपको थोड़ा टाइमलाइन समझाना चाह रहा हूँ, इसके लिए वो ये डायग्राम अभी है यहाँ पे। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, this is what is called the middle of the, फिर in other words the start of modern India in Indian history. ओके, 1757 बैटल ऑफ प्लासी। यहाँ से लेके 1858 इज द ईयर जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी वाज फाउंडेड। ओके, सो ये जो एक पीरियड है 1757 से 1857 तक, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में ऑफ मॉडर्न इंडिया। 1757 से 1880 मैंने बोला था ना, वो पार्ट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया की पहला पार्ट यहाँ पे रहेगा। ओके, अभी देखो जब हम लोग ये पार्ट करेंगे ना, हिस्ट्री में कैसा होगा, जब हम लोग ये पार्ट करेंगे तो इस पार्ट में वी आर गोइंग टू सी हाउ द ब्रिटिशर्स वर एबल टू कंसोलिडेट देमसेल्फ इन इंडिया। Okay, so this is the phase when period after period, time after time, year after year, the Britishers are able to consolidate या strengthen their hold in India. वॉर करेंगे, बैटल करेंगे, ट्रीटीज करेंगे, ओके, ये वो सब कुछ करेंगे। वो क्या क्या करते हैं, दिस ऑल हमको यहाँ देखना है। ओके, इन दिस पीरियड अभी देखो क्या होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म होती है 1850 1885 से, okay, so Congress is formed as the reaction to the exploitation done by the Britishers. So 1858 it becomes an important divider in Indian history. क्यों? क्योंकि 1885 के आगे से क्या होगा, अभी जो एक्सप्लॉइटेशन, जो स्ट्रेंथन ब्रिटिश रूल ने अब तक किया था, उसके अगेंस्ट अब इंडिया का रिएक्शन शुरू हो जाएगा। In 1885 provides the launch of वन नेशनल लेवल पार्टी जो लीडरशिप प्रोवाइड करेगी ये रिएक्शनरी फोर्स के। तो 1757 से लेके 1885 तक क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल होगा। 1885 से ऑनवर्ड्स क्या होगा, द सीड्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट आर गोइंग टू बी सोन बाय द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडिया का रिएक्शन सभी स्टार्ट होंगे 1885 ऑनवर्ड्स कि ब्रिटिश आपने जो किया उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो 1885 से वो कल शुरू हो जाएगा और 1847 में फिर जाके इंडिपेंडेंस आता है। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया है और ये 1885 फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस से लेके इंडिपेंडेंस तक, दिस इज नथिंग बट द सेकंड पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो देखो ये दोनों मॉडर्न इंडिया ही है, बट आई एम ट्राइंग टू डिवाइड देम क्योंकि इन दोनों के अप्रोच में टोटली डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे हमें अप्रोच जो देना है वो ब्रिटिश की स्ट्रेंथनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। यहाँ पे हमें जो सेकंड पॉइंट में जो हमें अप्रोच देना है, इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट आर द इंडियंस गोइंग टू डू अबाउट इट। ओके, तो इंडियंस आर गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट इंडिपेंडेंस में, ब्रिटिश आर गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट। समझ रहे हो? ओके, तो जब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उस तरह से हमें जब स्टडी हम करेंगे तो हमको अपने ब्रिटिश आर मोर इंपॉर्टेंट मतलब क्या, कि वी हैव टू
study this part from the role of Britishers. ठीक है. And second part जब हम करेंगे तो you have to study it from role of Indians. For example, role of Gandhi. For example, role of Nehru. For example, role of Sardar Patel. For example, role of Tilak. ओके ये यहाँ पे आएगा. ऊपर देखो इंडियंस के नाम बहुत ही कम आएंगे और नीचे ब्रिटिशर्स के नाम बहुत ही कम आएंगे. Are you able to differentiate these 2 points? और जो ये थर्ड पार्ट है this one, it is nothing but post independence India, जो मॉडर्न इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस का पार्ट है. तो राइट नाउ हम ये दोनों पे फोकस कर रहे हैं. ये थर्ड पार्ट जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस बाद में करेंगे तभी आएगा. ओके तो अभी हम स्टार्ट करेंगे द एंट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. ठीक है. तो एंट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया जो है वो थोड़ा समझने के पहले थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ. ठीक है. अभी समझो कि हम लोग जब मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं, ओके, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, ये सबको क्लियर रहना चाहिए. लेकिन तीन पार्ट, तीन टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री है. ओके तो जब हम मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं मतलब जब मुस्लिम रूल्स होता है इंडिया में तो उस टाइम मुगल्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल ओके फर्स्ट हाफ में सुल्तान्स रहते हैं, सेकंड हाफ में मुगल्स रहते हैं. तो मुगल्स का डाउनफॉल, औरंगजेब के बाद मुगल्स का डाउनफॉल शुरू हो जाता है. ओके ये सब मतलब दिस यू माइट हैव स्टडीड ऑलरेडी, स्कूल वगैरह की स्टोरीज है ये. ओके तो अभी जब मुगल्स का डाउनफॉल शुरू हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है कि अदर पीपल स्टार्ट टू एंटर इंडिया. अदर पीपल यहाँ पे कौन है? यहाँ पे यूरोपियंस है. ब्रिटिशर्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, यूरोपियंस बोल रहा हूँ. यूरोपियंस मतलब क्या? पोर्टुगीज भी आने वाले हैं, डच भी आने वाले हैं, फ्रेंच भी आने वाले हैं और ब्रिटिशर्स भी आने वाले हैं. ठीक है. तो ये सब लोग इंडिया में एंटर करेंगे. ओके तो व्हेन वो इंडिया में एंटर क्यों करते हैं ये सब वी विल सी. ठीक है. क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, एवरीथिंग वी विल सी. ठीक है. तो जब वो एंटर करते हैं तो अगर इंडिया में उस टाइम पे व्हेन दीस पीपल, व्हेन द यूरोपियंस आर एंटरिंग इन इंडिया, अगर उस टाइम पे एक बहुत ही कोई पावरफुल बंदा होता, जैसे मुगल्स पहले थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब के टाइम पे, अगर वैसा बंदा होता देन दे वुड हैव कंट्रोल्ड द पावर ऑफ यूरोपियंस. ओके बट इंडिया में खुद ही क्या था उस टाइम पे? फ्रेगमेंटेड थे. फ्रेगमेंटेड मतलब क्या? वी इंडियंस वर एक्चुअली फाइटिंग अमंग आवरसेल्फ. मराठास फाइटिंग विद राजपूत्स, मराठास फाइटिंग विद द मैसूर, मराठास. ओके ये फाइटिंग चल रही थी. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो क्या होगा कि ये जो फाइटिंग चल रही है, ब्रिटिशर्स गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले पॉलिटिक्स अमंग इंडियंस. ओके ताकि आप सब लड़ो आपस में और हमको फायदा हो जाएगा. सो दिस ये पॉलिटिक्स उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की थी. ओके तो ये पूरा बैकग्राउंड हमें थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा अगर हमको समझना है कि हाउ व्हाई द ब्रिटिश वर एबल टू विन. ठीक है. तो ये पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट अभी समझो कि फॉर एग्जांपल व्हेन द यूरोपियंस आर कमिंग, यूरोपियंस में एवरी यूरोपियन विल वांट कि आई शुड कंट्रोल ओवर इंडिया. फ्रेंच वाला चाहेगा कि मेरा होना चाहिए, ब्रिटिश चाहेगा मेरा होना चाहिए, पोर्टुगीज वाला चाहेगा कि मेरा होना चाहिए. ओके तो एवरीबॉडी वांट टू कंट्रोल इंडिया. So because of this, India is going to also become the battlefield of these European countries also. वो आपस में ये भांडन यहाँ पे करेंगे. ठीक है. तो आपस में ये भांडन करते हैं और हमसे इंडियन से भी भांडन करते हैं. ओके तो वॉर उनका चलता रहता है. ठीक है. तो ये जो पार्ट है, when Britishers are fighting, sorry, the Europeans are fighting among themselves, and British are going to come out as a winner. Okay, and then the Britishers are fighting with Indians also. ठीक है. ये दोनों पार्ट को साथ में हम बोलते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया. ओके इज कॉल्ड द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया. कॉन्क्वेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देयर आर गोइंग टू बी वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विच द ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू यूज टू कॉन्कर इंडिया. ओके और ये कॉन्कर इंडिया जो होगा वो दो फेस में होगा. पहले फेस में क्या होगा? यूरोपियंस को भगाने का, सबको, अपोजिशन पार्टीज को. दूसरा फेस में क्या होगा? फिर इंडियंस को हराने का, इंडियंस के जो किंग्स और प्रिंसेस रहेंगे उस टाइम पे. ये दो फेस उसको साथ में बोलते हैं ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. ये क्यों हो पाया? क्योंकि उस टाइम पे आफ्टर द मुगल्स बिकम वेरी वेरी वीक, ओके मेडिवल इंडिया के मुगल्स जो थे वो बहुत वीक हो गए. तो देयर वाज नॉट अ पावरफुल एम्पायर लेफ्ट इन इंडिया ओवरऑल व्हिच विल बी एबल टू टैकल द. ठीक है. ये सेकंड पॉइंट हो गया. ओके तो अभी हमको मुद्दा ये आता है कि यूरोपियंस को यूरोप में रहना चाहिए ना, इंडिया में क्यों आ रहे हैं वो लोग? बड़ा मुद्दा ये. ओके व्हाई दिस पीपल आर कमिंग टू इंडिया? ओके most important reason these people started coming to India was spices. Spices was the main reason why the Europeans came to India. Let's try to a bit understand ये पूरा का पूरा geography and history को mix करके थोड़ा. ठीक है.
इफ यू सी प्रॉपरली, जो ये रेड में दिखाया है ना, ये उस टाइम का ओल्ड सिल्क रूट होता था, ठीक है, थ्रू विच द यूरोप यूज टू ट्रेड विद द मेजोरिटी ऑफ द एशियन कंट्रीज, चाइना, इंडिया और आगे सब, ठीक है। जो ये ब्लू में दिखाया है, ये ओशन रूट था, सी रूट था, थ्रू विच द ट्रेड हैज यूज्ड टू हैपन। तो अभी समझो क्या हुआ था कि अराउंड 16th सेंचुरी, 16 17 सेंचुरी के आसपास, ओके, 16 17 सेंचुरी के आसपास क्या हुआ था, ओके, दिस एरिया जो आज टर्की हम कहते हैं, ओके, ये एरिया आज आज का टर्की यू कैन से, दिस वेंट इनटू द कंट्रोल ऑफ इस्लाम। मतलब उस टाइम का यू कैन से ऑटोमन एम्पायर, ओके। तो इस्लाम हैड फुल कंट्रोल ओवर दिस एरिया। अभी देखो समझो, अगर ये एरिया जो कंट्रोल कर रहा है बंदा, वो बंदा क्या करेगा, दे विल बी एबल टू कंट्रोल द ट्रेड बिटवीन द यूरोप एंड द एशिया, नॉट ओनली द लैंड रूट वाला ट्रेड, दिस वाला ट्रेड, बट ऑल्सो ये वाला ट्रेड, दोनों वाला ट्रेड, ठीक है। तो व्हेन इस्लाम वर एबल टू हैव कंट्रोल ओवर दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एरिया, ओके, ऑटोमन एम्पायर बोलते हैं उसको, ठीक है। When they were having control, this became a religious war between the Islam और यूरोप में क्या था, क्रिश्चियनिटी, समझ में आ रहा है। तो ये शुरू हो गया इन दोनों के बीच में। ऑटोमन्स ने क्या किया, दे स्टॉप्ड ऑल द ट्रेड विथ द यूरोपियंस, ओके, स्टार्टेड कंट्रोलिंग नॉट ओनली द लैंड रूट बट आल्सो दिस सी रूट, जो मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पे का जो सी रूट था, ठीक है, started controlling everything over here, okay, hence the Europeans were not able to come to Asia for the trade, India and China and Indonesia, ठीक है। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, okay, यूरोप वालों ने क्या किया, यूरोप वालों ने बोला कि अब हमको कुछ नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा इंडिया में जाने के लिए, ठीक है। अभी समझो, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, दिस इज द पीरियड, ये जो 16 17 सेंचुरी जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द पीरियड व्हेन यूरोप में ना बहुत बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस होंगे। ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, आपको जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओके, ब्रिटिश रिवॉल्यूशन, ये सब इस टाइम पे होता है यूरोप में। और यूरोप में जब ये रिवॉल्यूशन होता है ना, तो ऐसा बोलते हैं कि यूरोप इज एंटरिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। यूरोप में मॉडर्निज्म इतनी जल्दी आ गया, मॉडर्न जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न आ गया, बिकॉज ऑफ विच देखो क्या होता है, ये मॉडर्न फेज इज गोइंग टू गिव राइज टू पॉइंट नंबर वन, इट इज गोइंग टू गिव राइज टू समथिंग कॉल्ड ज्योग्राफिकल सर्च। ज्योग्राफिकल सर्च मतलब क्या, कि इट इज गोइंग, अभी तक सबको लगता था कि जो अर्थ वर्ल्ड है वो बस यूरोप के, यूरोप या एशिया के, ओके, बिकॉज ऑफ फ्लैट लैंड ये सब, ओके। ये दिस मॉडर्निज्म जो आएगा, साइंटिफिक थ्योरीज जो आएंगी, दिस इज गोइंग टू गिव राइज टू द सर्च फॉर न्यू लैंड, न्यू एरियाज, नई नई जगह के लिए, ओके। तो ये जो न्यू सर्च अगर उनको ज्योग्राफी में करना है, देन दे आर गोइंग टू नीड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प करेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए, सो दैट उनके पास कंपास होना चाहिए डायरेक्शन वाला, दे शुड हैव बिगर एंड बिगर बोट्स which will be able to help them to go far in this, should have proper weapons with them, will be able to also war with any at the unknown area जब जाएंगे वो लोग, ओके। देखो यही पीरियड है, ओके, दिस इज द पीरियड जब यूरोप से सब लोग बाहर निकलते हैं इन द सर्च ऑफ न्यू ज्योग्राफीज, एंड दे आर एबल टू सर्च द अमेरिका। यही पीरियड है जब कोलंबस इज एबल टू सर्च अमेरिका। एक्चुअली वो बाहर निकला था टू सर्च इंडिया, लेकिन वो पहुंच गया कहाँ, वेस्ट इंडीज, इसलिए उसको लगा कि इंडिया है, लेकिन वो वेस्ट में गया था, इसके लिए वेस्ट इंडीज बोलते हैं उसको, ओके। फिर वेस्ट इंडीज से ही वेंट टू अमेरिका टू सर्च इट, ओके। वैसे ही सेकंड टीम जो थी वो डाउन नीचे आई, नीचे मतलब अफ्रीका की तरफ आई, एंड दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इंडिया ओवर देयर, या कोई तो सी रूट होगा चले जाएंगे। वो क्यों सर्च कर रहे हैं ये सब, दे आर सर्चिंग बिकॉज दिस एरिया, जो मेडिटेरियन सी वाला एरिया है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इस्लाम, एंड इस्लाम इज नॉट अलाउिंग द यूरोपियंस टू डू ट्रेड, बट यूरोपियंस वांटेड स्पाइसेस, उनको ये चाहिए ही था कुछ भी करके, क्योंकि एंड इस पूरा का पूरा स्पाइसेस यही मिलेगा, इंडिया, इंडोनेशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में उनको, हेंस दे वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया मोर एंड मोर, ठीक है। तो ये जो मॉडर्न एज आता है यूरोप में, इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द बेस टू स्टार्ट द सर्च फॉर न्यू एरियाज, और उस न्यू एरियाज के सर्च में दे आर एबल टू फाइंड अ न्यू सी रूट टुवर्ड्स इंडिया। This one starting with Portuguese,
दे आर कमिंग टू दिस, ओके, यहाँ से देखो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में, अफ्रीका से फिर इंडिया में आए थे। ये क्यों हुआ? बिकॉज दे हैव स्टार्टेड टू सर्च अ रूट फॉर इंडिया, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम थ्रू दिस वे, उन्होंने ये रास्ता अपनाया इंडिया। Okay, so this became the route till the Ottomans were very strong in the Turkish region, जहां से रास्ता है इंडिया में आने का पहले का। The need was spices, which actually provided the impetus to search for the sea route towards India. ये impetus actually spices से मिला, जिन्हें स्टार्ट किया, और फिर यहाँ से आने के बाद ये उन्होंने इंडिया में aid with the spices। मतलब क्या? These people are actually coming to India as traders। कोई थोड़ा स्टोरी समझो, अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ स्टोरी यहाँ पे। अभी समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी फॉर एग्जांपल आई एम द पर्सन हु इज कमिंग टू इंडिया एज अ ट्रेडर। मैं ट्रेड करने इंडिया में आऊंगा, ठीक है, मेरे पास 100 रुपीज है, मैं आपको 100 रुपीज दूंगा। वो 100 रुपीज आप लोगे, आप क्या बोलोगे? मेरे को स्पाइसेस दोगे। फिर वो स्पाइसेस को लेके मैं मेरे बोट में डालेगा, वापस पूरा अफ्रीका के नीचे से घूम के मैं ऊपर जाएगा यूरोप में, मैं उसको सेल करेगा। वो सेल करने के बाद आई विल अर्न 150 रुपीज, 50 रुपीज मेरा प्रॉफिट, 100 रुपीज लेके मैं वापस आएगा ट्रेड करने के लिए इंडिया में। ये गोज ऑन फॉर सम टाइम, ठीक है। सडनली क्या होता है कि, समझो, सडनली क्या होता है कि मैं ब्रिटिश था, ओके, तो मैच चल रहा है, सडनली क्या होता है, फ्रेंच वाले आ जाते हैं। फ्रेंच वाले आते हैं तो क्या होता है कि अभी इंडिया में स्पाइसेस जो है वो तो उतना ही केजी है। फ्रेंच वाले आए तो अभी क्या डिमांड बढ़ गई, बिगिस भी है, फ्रेंच भी है, डच भी, सबको स्पाइसेस ही चाहिए होता है। तो अभी क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई तो उतना ही है। तो बिकॉज ऑफ विच देयर इज राइज इन द प्राइसेस ऑफ द स्पाइसेस, ठीक है। तो ये प्राइसेस ऑफ स्पाइसेस जब बढ़ जाता है, लेकिन मेरे पास तो 100 रुपीज ही है, तो नाउ आई एम गोइंग टू हैव लेस अमाउंट ऑफ स्पाइसेस विथ मी। जब मैं लेस अमाउंट ऑफ स्पाइसेस लेके जाएगा, मेरे खर्चे तो उतने ही है ना, बिकॉज आई हैव टू गो बाय द सेम रूट ऑफ अफ्रीका को राउंड करके। ओके, सो नाउ क्या हो रहा है, अर्लियर दैट मैं 50 रुपीज अर्न करता था, आई विल नाउ अर्न ओनली 20 रुपीज, तो मेरा प्रॉफिट लो हो गया इमीडिएटली, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू साइन सम ट्रीटीज विद द लोकल रूलर्स। तो क्या मैं बोलेगा कि भाई एक काम करो, फॉर एग्जांपल जहांगीर है या फिर शाहजहां है जो रूल कर रहे हैं इंडिया में एट दैट टाइम, ओके, मैं उसको बोलेगा कि भाई एक काम करो, अलाउ मी टू ट्रेड विद इंडिया टैक्स फ्री, आई विल नॉट पे एनी कस्टम ड्यूटी, ये नहीं करूंगा मैं, वो नहीं करूंगा, ओके, मेरे को अलाउ करो, मैं आपका 200 रुपए का स्पेशल लेके जाएगा। तो अभी क्या होगा, एट दैट टाइम मुगल्स इकोनॉमिक से भी सोच रहे थे, तो उनको लगा कि इफ आई एम गोइंग टू अलाउ देम टैक्स फ्री एंड द ट्रेड फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज गोइंग टू इंक्रीज मच, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट होगा, मेरे इंडियंस को प्रॉफिट होगा। इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ उन्होंने बोला ठीक है टैक्स फ्री। आज हम लोग टेस्ट ट्रीटी साइन करते हैं, उस तरह उस टाइम पे टेस्ट ट्रीटी साइन हो गया, एक तरह के मुगल्स ने बोला ओके ब्रिटिशर्स, सॉरी यूरोपियंस, टैक्स फ्री लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया। फिर क्या हुआ, अभी ये मुझे मिल गया, बट आई वांट मोर प्रॉफिट, क्योंकि मैं बिजनेसमैन है, मैं ट्रेडर है, आई एम नॉट वहां का, मैं तो ट्रेडर है ना, मुझे प्रॉफिट और चाहिए। फिर मैं जाऊंगा उनको बोलूंगा कि भाई एक काम करो ना, लेट मी मेक अ वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब क्या, कि आई विल कम वन एट अ टाइम, मैं एक साथ 100 kg स्पाइसेस लेगा, मेरे वेयर हाउस में रख देगा, और उस वेयर हाउस में से फिर मैं निकाल निकाल के लेके जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए वहां पे, समझ रहे हैं? तो वो बोलेगा ठीक है बना लो, कोई इशू नहीं है मुझे, लेकिन वो बनाते टाइम ये मतलब वो बनाते टाइम डोंट कीप आर्मी इन दैट, डोंट कीप द वॉल्स वेरी हाई, ओके, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलते हैं ठीक है। तो वेयर हाउस बना लिया उसने, अभी समझो, वेयर हाउस मैंने बना लिया, वेयर हाउस में मैं आ जाया, मैं 100 kg स्पेस निकला गया मैं सेल करने, लेकिन मेरे वेयर हाउस में अभी 500 kg स्पेसेस है ना, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई तो बंदा आके मेरा वेयर हाउस पर लेकर चल गया तो क्या होगा, नीड सम पीपल टू सिक्योर दैट वेयर हाउस ना, okay? तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यूरोप से आर्मी बुलाई कि आर्मी वाले आ जाओ, मेरे वेयर हाउस को सिक्योर करना है। तो आर्मी की परमिशन ली मैंने, आर्मी वाले यूरोपियंस आ गए यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे, ओके, देयर बाय वेयर हाउस बिकेम फोर्ट, ठीक है, तो ये फोर्ट अभी बन गया और आर्मी आ गई सिक्योरिटी के लिए। तो आर्मी अभी मैं ज्यादा आर्मी नहीं लेके आ सकता, क्यों नहीं लेके आ सकता, जितने यूरोपियंस को मैं इधर बुलाएगा उनको सैलरी देनी पड़ेगी ना, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, आई एम ट्रेडर, आई एम बिजनेसमैन, मैं प्रॉफिट सोचेगा,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि ओके, मैं बड़े बड़े जो आर्मी है, मतलब जनरल जो है ये है, मैं अपर पोजीशन वाले जो है वहां से बुलाऊंगा, और लोअर पोजीशन वालों को मैं इंडियंस को ही रिक्रूट करूंगा। देयर बाय क्या हुआ कि एक्चुअली देखो, दे आर नॉट ट्राइंग टू कॉन्कर इंडिया, दे आर ट्राइंग टू, द यूरोपियंस आर एक्चुअली ट्राइंग टू सिक्योर देयर बिजनेस, ताकि मेरे को प्रॉफिट हो, लॉस नहीं होना चाहिए। लुटेरेस आएंगे, दे आर गोइंग टू टेक एवरीथिंग, तो उससे अच्छा लेट मी सिक्योर माय फोर्ट, वेयर हाउस। तो वेयर हाउस एक्चुअली बिकेम फोर्ट विथ वहां पे एक कमांडर को बैठा दिया जो यूरोपियन था, एंड सम सोल्जर्स जो इंडियंस थे, अलोंग विद सम सोल्जर्स जो यूरोपियन भी थे। ये हो गया, तो वो फोर्ट बन गया। अभी क्या हुआ, एवरी यूरोपियन कंपनी, कंपनी मतलब ट्रेडर्स जो थे, ओके, या फिर ये इंग्लिश हो या फ्रेंच हो या पोर्टुगीज हो या डच हो, सब लोगों ने अपने अपने फोर्ट बनाने शुरू कर दिए। कहाँ ये फोर्ट बनेगा? मोस्ट ऑफ दिस फोर्ट्स आर गोइंग टू कम अप एट द कोस्टल एरियाज। क्यों? ये कोस्ट पे से फटाफट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेंगे ना, इसके लिए। ओके, ये फोर्ट बना लेंगे। अभी ये फोर्ट बना के क्या करेंगे कि दे आर गोइंग टू स्ट्रेंथन देमसेल्फ। उस फोर्ट को वो क्या करेंगे, चारों तरफ मस्किटियर्स लगा लेंगे। ओके, उस फोर्ट में कमांडोज को डाल देंगे, उस फोर्ट में और आर्म्स एंड वेपन्स ला के रखेंगे। ओके, ये कर देंगे। उसके बाद क्या होगा कि व्हेन द इंग्लिश इज सेइंग कि फ्रेंच वाले आके वो बढ़ा रहे हैं भाव, तो बोलेंगे फ्रेंच वाले तुम जाओ, यहाँ से जाओ, मेरे को ट्रेड करने दो। वो बोलेगा मैं क्यों जाऊं, तुमको जो राइट है मेरे को भी राइट दिया उन लोगों ने, देखो पास है मेरे पास। ठीक है, तो वो दोनों आपस में लड़ेंगे। पोर्टुगीज बोलेगा सबसे पहले तो मैं आया था, मेरे को क्यों भगा रहे हो? तो बोलेगा कि तुम आए थे तो क्या हुआ, अभी हम भी आ गए हैं। तो वो फिर उनमें वॉर होगा। Okay, so these people are the Europeans mostly are going to actually fight for the to get superiority, for fight for the superiority, so that I will be the only person जो यहाँ पे रहेगा, तो मेरी मोनोपोली रहेगी ट्रेड पे। इसके लिए ये कर रहा है बंदा। ठीक है, तो अगर मुझे अभी उस बंदे से फाइट करना है, आई कैन नॉट फाइट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्जर्स। क्या करता हूँ मैं, इंडियन के जो किंग्स थे छोटे छोटे, उन लोगों से मैं ट्रीटी साइन कर लेता हूँ, तो मेरे साइड आ जाओ, मेरे से फाइट करो, मेरा जो प्रॉफिट होगा उसमें से आई विल गिव यू समथिंग। ओके, सो दे आर गोइंग टू मेक अ ट्रीटी विद दिस पीपल एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट द फाइट। ओके, ये फाइट होते 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 सब हार जाते हैं, ब्रिटिश जीत जाता है। ब्रिटिश जीत जाता है, तो ब्रिटिश को अभी क्या लगता है कि अगर मुझे मेरा ट्रेड बचाने का है तो आई नीड टू इंक्रीज माय एम्पायर। अभी समझो ये क्यों होता है। ओके, व्हाई देयर इज एक्सपांशन नाउ। अभी इफ आई वांट टू ट्रेड, ओके, मतलब मेरे पास 100 रुपीज रहेगा तभी तो मैं इंडिया में आके ट्रेड करेगा, तो आई हैव टू ब्रिंग दैट 100 रुपीज फ्रॉम यूरोप ना। यूरोप से मैं लेके आता है, इंडिया में 100 रुपीज डालता है, मैं फिर उसको बेचता है, आई गेट सम प्रॉफिट। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे ये 100 रुपीज इंडिया में ही मिल जाए तो क्या बुरा है? Why should I bring 100 rupees from घर से? Okay, hence Britishers wanted some territory. टेरिटरी मतलब क्या, कि उनको इतना एरिया मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल बंगाल मिल गया, तो बंगाल के फार्मर से ही लैंड रेवेन्यू लेंगे, टैक्सेस लेंगे, उस टैक्सेस की मनी से दे विल बाय स्पाइसेस या जो भी उनको चाहिए। ओके, उसको फिर एक्सपोर्ट करेंगे, पूरा का पूरा उनका प्रॉफिट है। मैं रिपीट करता है the point. Okay, instead of bringing 100 rupees from Europe, what if I am able to raise 100 rupees in India itself? कैसे पॉसिबल होगा? इफ आई हैव गॉट सम कंट्रोल ओवर सम ऑफ द लैंड, तो उस लैंड के फार्मर से मैं टैक्स रेवेन्यू एक्सपेक्ट करेगा। इफ आई एम एबल टू एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम दोस फार्मर्स, उसी पैसे से देन आई एम गोइंग टू बाय स्पाइसेस, उसी पैसे से उस स्पाइसेस को मैं एक्सपोर्ट कर देगा। पहले जो 150 रुपीज के लिए 100 रुपीज मेरा खुद का जाता था, नाउ आई नीड नॉट एनी 100, 150 का 150 मेरा प्रॉफिट। समझ रहा है? ओके, तो ये अभी प्रॉफिट मुझे ज्यादा दिख रहा है। मैं क्या सोचेगा, अगर एक इतना बंगाल में बस इतना है, देन पूरे इंडिया को अगर कंट्रोल करूं तो मैं कितना होगा। हेंस आई स्टार्ट टू एक्सपांड। जब मैं एक्सपांड करेगा, तो इंडियंस के जो किंग्स और प्रिंसेस है उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, उनको मजा नहीं आएगा। हेंस नाउ द ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू हैव कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडियन किंग्स लाइक मराठास, लाइक मैसूर, लाइक बंगाल, लाइक अवध, इन सब से वो फाइट करेंगे। और समझा? मतलब कि जब हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटिश पढ़ेंगे तो पहले फेज में किससे कॉन्क्वेस्ट किया? अदर यूरोपियन कंट्रीज से। क्यों किया? आई एक्सप्लेन यू। फिर दूसरे फेज में किससे कॉन्क्वेस्ट करेंगे? इंडिया के प्रिंसेस और किंग से। क्यों किया?
Again, I explained you this only. All of you got the point? क्या सबको? This is what I was saying. When the British are going to conquest, in the first phase, they are going to conquest with European powers. यूरोपियन पावर्स को वो हराएंगे, इनको हरा देंगे तो फिर सेकंड फेज में इंडिया के जो पिछले स्टेट्स हैं उनसे वो फाइट. दो फेज में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हो. इन द फर्स्ट फेज विद द यूरोपियंस जो मैंने अभी आपको बताया, इन द सेकंड फेज विद द प्रिंसली स्टेट्स जो वापस मैंने अभी आपको बताया. पॉइंट. लेट्स मूव टू द फर्स्ट फेज जब वो यूरोपियन पावर से कॉन्क्वेस्ट करते हैं. These are the European powers. आपस में होगा. They were the first to come, the French, the second to come, the Dutch, the third to come, the fourth, the British to come. क्योंकि हम लोग ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद लेट्स फर्स्ट ब्रिटिश का जो ये है, हाउ दे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ा ये समझ के लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर कि वॉर कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ उनका. द फर्स्ट फेज were granted the royal charter by the Queen Elizabeth in 1600. मतलब क्या कि the Queen of the England, the Elizabeth, granted them a permission to trade. A company was set up. इस कंपनी को पहले क्वीन से परमिशन लेना पड़ेगा that we want to trade with the other nations, other land. Okay, उस लैंड पे हमें जाना है तो give us the permission. तो परमिशन को रॉयल चार्टर बोलते हैं. ठीक है, so this was granted. वो ग्रांट कर एक बार चार्टर मिल गया आपको, देन क्या होगा कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको आप सेल करोगे. शेयर्स wealthy traders and aristocrats, the bureaucrats are going to buy. they ये क्यों है? क्योंकि some amount of money is required in the initial period ना कंपनी को, but they will be able to start the venture. बहुत रिस्की वेंचर है, क्या पता सक्सेस होगा कि नहीं होगा, क्या पता इंडिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा. Okay, so some amount of money has to be raised from the market. So that money was raised from wealthy merchant and aristocrat. मतलब क्या देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी was actually a company जिसमें शेयर होल्डिंग was with the merchants and the aristocrats. ठीक है, ये कंपनी को परमिशन मिला क्वीन से टू ट्रेड विद द ईस्ट इंडीज, द ईस्ट में जो लैंड है उसके उससे. ओके, बट एट द एंड वी विल सी कि हाउ कि जो यूरोपियन पावर में जो इशू हुआ था, ब्रिटिश एक्चुअली ट्रेडेड इन within the Indian subcontinent. Main material apart from spices which was used in trading was cotton, silk, indigo dye, salt, saltpeter and opium. ठीक है, ये दोनों बाद में आता है. स्टार्टिंग में spices is the most important, and when the industrial revolution starts in Europe, उस time cotton and indigo is the most important. ये दो स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा लेट में 1900 के आसपास इंपॉर्टेंट होता है. स्टार्टिंग में होता है. These are the main metal which was used to be exported from India to Europe by the East India Company. Eventually, this company, which actually started only as a trading company, came to rule the large areas of India. क्यों? I told you this, explain किया मैंने. ठीक है, with its own private army. I told you उनको army क्यों चाहिए? I explained you. It was having the military power. It was having administrative functions also. सब जगह Europeans को बुला के they have set up the military power. They have set up the administrative functions also, so that they will be actually able to control the Indians working. क्यों? क्योंकि so that they will be able to earn more and more profit. ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जब लॉ एंड ऑर्डर वगैरह मेंटेन रहेगा, जब प्रॉपर पॉलिटिक्स रहेगी, तभी वो होगा. और अगर वो नहीं हुआ, कुछ इशू हुआ, वॉर हुआ, hence they need military power also, so that they will be able to control peace. जब पीस रहेगा तभी ट्रेड होगा अच्छे से.
The rule began in 1757. ये अभी बताया मैंने आपको. The rule began in 1757 with Battle of Plassey. Battle of Plassey क्या था? जहाँ पे British were able to defeat the Bengal का नवाब. ठीक है. And this company rule continued till 1858. Okay, revolt of 1857 के बाद तक. Rebellion of 1857 के तक. के बाद the Act of 1858 आया, which crown over to डायरेक्ट, मतलब जो क्वीन थी, ओके, ब्रिटिश क्राउन, ओके, उन्होंने कंपनी को बोला भाई तुम हटो, हम खुद इंडिया को संभाल लेंगे. ये न्यू ईरा स्टार्ट हुआ. तो दो फेस में है यहाँ पे, ये भी देखना है हमको. सी प्रॉपर्ली, दिस इज द क्वीन, दिस इज द ब्रिटिश. ओके, क्वीन बोला कि हम, मैं नहीं जाऊंगी, ओके, आई एम गिविंग यू द चार्टर, यू गो स्टार्ट द ट्रेड विथ इंडिया. ये बंदा गया ब्रिटिश ट्रेड कंपनी ट्रेड करने के लिए. ट्रेड करते करते इसने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ले लिया, इसने मिलिट्री पावर ले लिया, सो दैट इट विल बी एबल टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट आउट ऑफ इट. ओके, ये करके फिर इंडियंस को गुस्सा आया, इंडियंस ने रिबेलियन कर दिया 1857 का रिवोल्ट में. जब रिबेलियन हो गया तो कंपनी बदनाम हो गई पूरे ब्रिटिश में. कंपनी जब बदनाम हो गई तो किंग ने बोला भाई तुम जाओ घर पे, अब मैं संभाल लूंगा. Over to the Indian control by the British crown automatically. पहले ये ऐसा था, इसको भगा दिया. Crown itself was सर्वा. That starting में the Britishers were able to get the royal charter from the Queen Elizabeth. ठीक है, तो क्वीन एलिजाबेथ ने उनको चार्टर दे दिया, उनको परमिशन दे दिया. तो उन लोगों ने क्या किया, एक कंपनी सेटअप की बाय द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, ये कंपनी जब सेटअप की तो इस कंपनी को अभी फंडिंग चाहिए. तो फंडिंग उन्होंने किससे लेके आए, बाय द मर्चेंट एंड द एरिस्टोक्रेट्स. तो इन लोगों ने कंपनी एक बनाई है, उस पैसे आ गए इनको, वेल्थ आ गया इनके पास. अभी दे हैव टू हैव अ प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म ओवर दिस कंपनी. ठीक है, तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म करने के लिए उन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सेटअप किया. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या, पीपल हु विल बी एक्चुअली, जैसे आज हम बोलते हैं ना हर प्राइवेट कंपनी की बोर्ड मेंबर्स होते हैं, तो वैसे ही बोर्ड मेंबर जैसा समथिंग board of directors था उस टाइम पे, who are actually going to control the company so that company will be able to earn profit. ओके, क्यों प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स है उनको आपको डिविडेंड्स पे करना पड़ेगा ना एवरी मंथ. तो अगर वो करना है, डिविडेंड पे करना है, then only you should be able to get more and more people to invest in your company, तभी आप प्रॉफिट कमाओगे मोर एंड मोर ना. तो ये सब करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे. ओके, एंड दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यूज्ड टू सिट इन लंदन. ठीक है, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंडर में कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, प्रोप्राइटरशिप जो कंट्रोल करते थे. तो इफ यू लुक एट द कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सबसे ऊपर कंपनी के ऊपर कंट्रोल था मोनार्च का. मोनार्च का क्यों, क्योंकि मोनार्च के परमिशन परमिशन मतलब वो चार्टर जो उनको मिला था कि बिना कंपनी कैन नॉट वर्क, वो परमिशन चाहिए ही होता है. ठीक है, और ये परमिशन उन्होंने दिया तो कंपनी को परमिशन मिला दैट कंपनी शुड बी पेइंग सम अमाउंट ऑफ टैक्सेस. ठीक है, अभी मोनार्ची जो है, अभी ब्रिटेन में क्या था कि पार्लियामेंट आ चुका है, वन ऑफ द लिस्ट पार्लियामेंट ब्रिटेन में था. तो मोनार्ची के बाद इस पार्लियामेंट से भी कंट्रोल में था. पार्लियामेंट यूज्ड टू एक्चुअली चेक द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, तो इस कंपनी के ऊपर देयर वाज अ डुअल कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ मोनार्ची टू गेट द चार्टर, टू गेट द परमिशन इन द नेम ऑफ द किंग, एंड देन द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट आल्सो. दोनों का कंट्रोल यहाँ पे था. ठीक है, एंड देन इस कंपनी के नीचे, मतलब कंपनी के ऊपर ये दो बॉस थे, इन कंपनी के नीचे मतलब द वर्कर्स ऑफ द कंपनी में द मोस्ट इंपोर्टेंट पीपल वर दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हु वर एक्चुअली द बोर्ड मेंबर्स, यू कैन से इन अदर वर्ड्स, हु वर एक्चुअली अपॉइंटिंग द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स. और ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में से एक बंदा था, इसको हम गवर्नर बोलते थे, रॉबर्ट क्लाइव, who used to actually the head the इंडिया में आने के बाद who used to head everything. तो ये स्ट्रक्चर, दिस वाज द स्ट्रक्चर जो कंपनी सेटअप किया था. बॉस में देखो दो बॉस है, मराठी एंड पार्लियामेंट, एंड वर्कर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट वर्कर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, के अंडर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स. सबको समझा? ये देखते हैं. when when they came into India, I told you they came to India at 17th-18th century में. उस टाइम पे इंडिया में there were many small kingdom, जिसको हिस्ट्री में we called fragmented politics. इंडिया में there was not a centralized empire जैसा कि मुगल्स के टाइम पे था, मतलब बिफोर औरंगजेब.
Okay, it was fragmented politics. Fragmented मतलब क्या कि there were many rules. Okay, मतलब मुगल्स भी थे but they were not as strong, they were actually weak. Okay, पेशवास भी थे. Okay, बंगाल में there was नवाब्स also. मैसूर में there was uh, what was the name, टीपू सुल्तान and उसका पापा हैदर अली. हैदराबाद में निजाम था. Okay, there were these four people who were actually मराठा एम्पायर के ब्रेकडाउन होने के बाद बने थे. द सिंधियाज, द भोसलेस, द होलकर्स एंड द गायकवाड्स. ओके, यूपी में अवध में नवाब वाज रूलिंग, सिख वाज रूलिंग एट द पंजाब लेवल, राजपूत्स वर रूलिंग इन द राजस्थान एंड सिंध के ऊपर सिंधियाज ये रूल. सिंध वाज अ सेपरेट एम्पायर. ओके, मतलब क्या कि इफ यू लुक एट 1700 के टाइम पे जब औरंगजेब था, ओके, दिस होल पूरा was under the control of ये पूरा अंपायर मुगल अंपायर था. लेकिन 1700 के बाद जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासे हुआ, जब ब्रिटिश ने फर्स्ट बैटल लड़ा था डायरेक्ट बंगाल में, एट दैट टाइम these men within 50 years whole polity इतना unified empire broke down into these many small politics, जिसको हम बोलते हैं fragmented politics of India. Okay, they were then the British were actually trying to fight these peoples. Okay, it started from बंगाल में बैटल ऑफ प्लासे ऑफ 1757 से स्टार्ट हुआ वो. समझ रहा है? तो ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश, व्हेन द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट विल स्टार्ट, कॉन्क्वेस्ट यहाँ से शुरू होता है 57 से, ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश एक्चुअली इंडिया में फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स थी अंडर दीज मेनी पीपल. वी आर कॉलिंग इट रीजनल किंगडम्स. जो मैंने मैप में दिखाया आपको, ऑल द रीजनल किंगडम्स. मुगल्स भी थे, आई टोल्ड यू मुगल्स भी थे, बट उनका सॉवरेनिटी बस सिंबॉलिक था, मतलब नाम के वास्ते बस थे कि हाँ मुगल्स हैं. ओके, हमारे पास मराठास भी थे, who were actually the most powerful you can say at that time. Okay, so they were actually the facto ruler of the northern parts. ये कैसे, we will discuss in later on कि why I'm calling Marathas the de facto rulers of the northern parts. ठीक है, and because all these people जो ऊपर मैप में हमने ये देखा था, these people are actually fighting among themselves. The Marathas were fighting with the Nizam. Nizam was fighting with the Mysore. Bengal and Awadh were fighting. The Sikh was fighting with the Rajputs. Okay, ये आपस में भी fighting करते थे. This was giving rise to something called political instability also. Okay, अगर इनके में unity होती आपस में among all these regional kingdoms जो है, then maybe these people would have been easily able to defeat the East India Company at that time. But political stability and non-confidence among each other made Britishers play the card of divide and rule among these people, and they were able to actually win one by one above all of